हिमानी शुरू करिए प्लीज। A very warm afternoon to everyone. Welcome to the webinar series on homeopathy pharmacy organized by Sympathy Institute of Homeopathic Pharmacy and Hospital in collaboration with Delhi Homeopathic Medical Association. I, Dr. Himani Sharma, Assistant Professor, Sympathy Institute, wholeheartedly welcome each one of you for the today's webinar. I feel privileged enough to be the moderator for the today's session. We will try our best to provide you with the knowledge treasures by the best speakers across the country. Before beginning the session, let me acquaint you with Sympathy. Sympathy Institute of Homeopathic Pharmacy and Hospital existed and incorporated with registration of Delhi government in 2009 at New Delhi. The institute established, directed, and led by Dr. Arkant and his team with commitment to promote and provide homeopathic pharmacy system of medicine worldwide. The institute established in 2009 and conducting foundation courses in homeopathy, certificate in homeopathic dispensing, diploma in homeopathic pharmacy, and bachelor in homeopathic pharmacy with affiliation of government authorities and UGC recognized university. Sympathy Institute of Homeopathic Pharmacy and Hospital started homeopathic pharmacy courses with the purpose to educate the people in a quality manner and produce a qualified homeopathic pharmacists. The homeopathic dispensaries, hospitals, industries, they were facing the problems for many years. So Sympathy Institute took the initiative and started that kind of courses to reduce the quality of issues in the homeopathic industry. We are also participating and conducting free dispensaries, medical camps, health checkups in schools, and also regularly organizing a mega event for homeopathy that is run for homeopathy for our Indian society. This is all about Sympathy Institute. Now, we have with us a renowned physician and a great person, Dr. Deepak Sharma, General Secretary of Delhi Homeopathic Medical Association, DHMA, and founder director of Orbit Clinics. I request sir to say a few words about DHMA. Welcome, sir. थैंक यू डॉक्टर हिमानी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज के स्पीकर डॉक्टर RN वाही सर का। हालांकि ये सब अपने परिवार के ही हैं और मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग नए हैं, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में दिल्ली मेडिकल होम्योपैथिक एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल डिस्पेंसरीज और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं जिनको आज भी दिल्ली में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। दिल्ली नहीं, बाकी सभी लोग भी उनको बहुत अच्छी तरह याद करते हैं। हालांकि डॉक्टर RN वाही सर इस एसोसिएशन से भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर RN वाही सर ने मुझे एक बार बताया था कि ये जो एसोसिएशन है ये 1928 में ही ऑर्गेनाइज हो गई थी, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंटली प्रूफ हैं वो 1932 से हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 9711153617 पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं www.dhma.in। तो बिना किसी डिले के मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर हिमानी आप प्रोग्राम को प्रस्तुत करें। प्लीज कंटिन्यू। Thank you so much, sir, for a nice introduction. Now, I would like to introduce you all to our dignified and respected speaker for the today's session, Dr. RN Wahi, President, Homeopathic Pharmaceutical Association. Right from the time of entering the profession, Dr. RN Wahi joined Delhi Homeopathic Medical Association. He has occupied various positions, right from being an executive member to its president. On behalf of Delhi Homeopathic Chemists Associations, played important role in making the proposed regulation for drugs and cosmetic rules 1945 as applicable to homeopathic system of medicine. He has also played an active role in getting certain important clauses introduced in the Central Council of Homeopathy. In the years 1987 to 1988, he played a very proactive role in getting Delhi intoxicating spirituous preparations rules scrapped from getting their applicability to the homeopathic medicines. He has also been associated as a joint editor for the monthly journal of the association named Hahnemanian Homeopathic Sandesh. He is also associated with South Delhi Homeopathic Association. However, with the demise of its founder, President Dr. V.P. Gupta, in the year 2005, he has been entrusted the responsibility of being chairman, organizing the committee of the association. It is a matter of great satisfaction
that he has been able to create a responsible, respectable image of the association as the best organizer of its annual day National Homeopathic Conference, which has earned its brand image as KML, which is known as Kent Memorial Lectures. It is a matter for pride for the association that it has now conducted 28th annual conference, 15th under the chairmanship of Dr. R.N. Vahi. It was the first time that this time the two-day conference was held on the virtual platform, which in itself was a learning experience. And with the active cooperation of all, as well as the nice back-end activity by a professional team, it was highly appreciated as per the feedback received. In the capacity of being President Homeopathic Pharmaceutical Association of India, a body created to look after the joint interests of all stakeholders of various wings of homeopathy, viz. Industry, trade and AM, profession, and he has been successful in bringing many improvements in the drug and AM cosmetic rules, which was last modified on 10 November 2017. As founder director of International Homeopathic Foundation, he has successfully organized an International Homeopathic Congress in the year 2016. Even though there were many tough challenges, he is also a member of various organizations like Ayush Committee of PhD Chamber of Commerce and AMP Industry, Committee of Ayurveda, Siddha, Unani and AMP, Homeopathy, Drug Pricing Policy under Ministry of Ayush, Government of India. Editorial Board, National Journal of Homeopathy, NJH. He is also associated with various social activities and working continuously for the betterment of the society in the field of homeopathy. So today we will be discussing on a very interesting and innovative topic, reforms in drug and cosmetic acts required. I hope you all are looking forward for today's session. I request you all to listen patiently. You can post your queries in the chat box, which will be discussed at the end of the session. Now, without taking much time, I invite our dignified speaker for today, Dr. R.N. Vahi. Welcome, sir. Am I audible now? Hello? Yes, sir, you are completely audible. Okay, okay. Because I am not visible on the screen now. The screen is being occupied by the PPT. Anyhow, well, this is not the first time. Actually, it is the second time when we are taking this type of discussion. The earlier one was on importance of regulations in homeopathic practice. And today's part, one of the extended part of my earlier presentation. You know, we are all conversant with the, whether fully or not, but generally my feeling has been that after passing out of graduating, this topic is being put on the dustbin, I would put it, very unfortunately, and then we people don't bother to understand or recollect our responsibilities. But then, you know, somehow by various, maybe because, you know, I have entered the profession right from the time when it was in the transition stage. And of course, it is still continuing and challenges will remain. So I've been actively associated, as very clearly informed just now, to the, I think I deserve much more, much less, you know, than what has been expressed about me in the introduction. But anyhow, so now we are focusing only on the chapter of Drugs and Cosmetics Act, which was created in 1940, and the rules, you know, framed thereunder, which were enacted in 1945. So Deepak, kindly go to the next screen. Kindly change. So, right. Today's presentation is a part of the webinar series which is being continued there. Now, one problem I am finding, you know, because can I extend? Yes, just let me know. Now, interesting enough, many people ask me, KB, well, is there any spelling mistake in the word sympathy? I think I would request Dr. Kant to clarify this position because it is Simphathy. I mean, that we leave that thing to Dr. Kant. Next slide, please. Next.
So whenever we try to study any chapter, we must go through the introduction part of it as to how and why this came into a being. It's only then we can understand its utility and the changes which take place from time to time and the need thereof. So this act was enacted in the year 1940. It was Act number 23 of that year. Previously, there was no clear-cut law which could identify or differentiate between the use of poisons as well as the beneficial use of these substances. It was important part is that if at all the medicines or what are the doses which are required for medicinal purposes and others, which can be used as the poisons. So their use, it became important in that direction. Next slide, please. And it is important when we say it was introduced, there has to be an historical background. Prior to independence or earlier, actually, it was the medical systems which are prevalent in India. They were mainly Ayurveda and Unani systems of medicine. Ayurveda practitioners, they were known as Vaidyas, and Unani people as Hakims. This was all in the British era. Both the systems, they were working very nicely. And the good part was that their observations of these practitioners, it was so powerful that there's some problem in the screen. Yes, again. Their expertise was so much that only by gauging the pulse of the patient, they could tell his complaints or his or her complaints without any asking for them. That was the interesting part. Unfortunately now, in spite of all the gadgets, in spite of all the technological advances, I think our diagnosis is still, it is becoming more and more complicated. So British people, they wanted, actually, if you go slightly back further, it was in the year 1829 in February, when Lord Macaulay, he gave his presentation in the British Assembly, and he said, well, I have traveled along the length and breadth of India, and I could not find a single beggar in the country, and they are proud of their culture. So if we are to rule India, we have to inculcate them that our culture is superior to their culture. Only then, we'll be able to rule them. And also, that's a different story. So, and what I would say is that introduction of the allopathic system, it was more as a follow-up of these various studies, or I would say the recommendations of the Lord Macaulay. So what they said, they wanted to regulate the import of the drugs from Britain. So for that, a committee was constituted. Can we change the slide? The screen. Deepak, I think we have the screen is not sure. I think I'm reaching slide number 4, but it is still showing the slide number 1. Can you help me? Dr. Deepak? Yes, sir. Kindly move the slides, Okay, sir. What I'm finding, it is only slide number 1 which is showing. Please reach slide number 4. Sir, this is slide number. मेरे पास स्क्रीन में yes, ये तो इससे पहले आई है. Yes, historical background. इससे next अब आई है. ये मैंने बता दिया. Right, यहाँ पर आई है. जी. Yes, again now. तो देखिए, कोई से भी रेगुलेशन जब लानी होती है तो हमेशा एक उसका सिस्टम होता है जिसके तहत ये लाई जा सकती है. तो उस समय क्या था कि
सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई सा भी रेगुलेशन लाना हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से रेजोल्यूशंस आने चाहिए, उसके बाद में ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोई सेंट्रल लेवल का रेगुलेशन ला सकती थी। तो यही हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब रेगुलेट किया कि ब्रिटिश इंडिया से जो मेडिसिन इंपोर्ट करें ब्रिटिश इंडिया के लिए, तो उसके लिए उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल असेंबली में। एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई, तो उस कमेटी ने क्या किया, उसके बिल को रेफर कर दिया सिलेक्ट कमेटी को। हमारे होम्योपैथिक सेंट्रल CCH के एक्ट के लिए भी ऐसे ही हुआ था। तो उसमें उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी मोर ए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर फॉर यूनिफॉर्म कंट्रोल, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एज वेल एज इम्पोर्ट्स। उनका कलेक्टिवली एक लॉ होना चाहिए, तभी वो डिजायरेबल होगा। तो उसके मुताबिक लीगल प्रोसीजर्स जो थी उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहलाती थी, आज तो स्टेट्स कहलाती हैं, सभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी, तो उनको लिखा होने के भी आप जो है इसके लिए रेजोल्यूशन पास करिए, भेजिए, तब जाके फिर हम उसके ऊपर कोई एक्ट बना पाएंगे। तो ये चीज़ वहाँ से हुआ। फिर 1940 में तो ये एक्ट बन गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। बाद में रेगुलेशन हुई 1945 में। और देन लेटर आफ्टर इंडिया जब बिकेम इंडिपेंडेंट, तो एक और भी आया था रूल, विच वाज ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट। ये एक्ट इस वजह से लाया था कि बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स होते थे, ये मेडिसिन इस काम के लिए बहुत अच्छी है, दूसरे काम के लिए अच्छी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिस वजह से कि ताकि कोई भी कंज्यूमर कोई एक्सप्लॉइट ना हो, इसको देखते हुए उन्होंने जो है ये गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था। हालांकि अभी फिर उसके अंदर भी रिफॉर्म और होनी है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट तो एक और है, हम लोग जानते हैं वेरियस डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट ईयर जब से कोविड शुरू हुआ था तब से आप जानते हैं कि थर्मल स्कैनर्स हैं, और लाइकवाइज हमको फिंगर पे जो ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करने के लिए नाउ इट इज बिकमिंग कॉमन थिंग। तो इनके लिए भी स्टैंडर्ड्स वगैरह ये सारे के सारे रहते हैं अंडर मेडिकल डिवाइसेस एक्ट। तो अब इसके लिए भी जो है इस डिवाइसेस को भी इस एक्ट के अंदर लाया जा रहा है। ये डेवलपमेंट भी बात की चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। यस, एनिमेशन में सही से थोड़ा आज है आज का मेन टॉपिक पर, विच इज रिलेटेड ओनली टू द एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर क्या है कि 6 चैप्टर्स हैं मेनली। इंट्रोडक्टरी है, फिर इसके अंदर फिर है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरी, ड्रग्स लेबोरेटरी एंड सेंट्रल, and the drugs consultative committee, then import of drugs and cosmetics, manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics, then chapter 4A है, उसके अंदर provisions related to Ayurveda, Siddha and Unani drugs, and then miscellaneous। तो ये broadly एक्ट के अंदर है। एक्ट और रूल्स में फ़र्क होता है। एक्ट में जो है वो तो पार्लियामेंट से ही अप्रूव होता है सारा का सारा, और इसके बाद में जो रेगुलेशन बनते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर टेकिंग वेरियस प्रोसीजर्स वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, ये तो 6 तो चैप्टर बता दिए थे हमने, उसके अलावा इसमें शेड्यूल्स हैं। 2 शेड्यूल इसमें दिए हुए हैं। पहले में फर्स्ट शेड्यूल में क्या है कि दिस डिफाइंस दी, इसमें अथॉरिटेटिव लिटरेचर, इसमें बिलोंगिंग टू सिद्धा आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम है, यूनानी तिब्बती सिस्टम। ये मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि जिन नोटिफिकेशंस के अंडर ये आए हुए हैं। ये आप दीपक के मूव कर गई है, आप वापस उस पर आइए, स्लाइड मूव कर गई है, वापस आ गई है। हाँ, अभी आप फिर दोबारा करिए। हाँ, इससे नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। इससे भी नेक्स्ट आइए। हाँ, इसी पहली बार आ जाइए, सॉरी पहली बार आ जाइए, दोबारा से कर लिया। प्रीसीडिंग, यस, सेम स्लाइड। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो अथॉरिटेटिव लिटरेचर दिया हुआ है, और सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ उसके अंदर ये क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे जो कंप्लाई विद किए जाएंगे वेरियस ड्रग्स, चाहे वो इंपोर्ट की जाए या यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाए या
सेल के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको एग्जिबिट किया जाए, ये प्रोविजन जो है ये 1964 में 15 सितंबर 1964 से आए। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है कि ये हुआ था 19 स्टैंडर्ड फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। ये आए 1978 6 जून को। तो इसमें जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए वो थे, नंबर 1, देखिए स्टैंडर्ड्स हैं वो फार्माकोपिया के अंदर आते हैं। फार्माकोपिया के अंदर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आए तो इंडिया में सबसे पहले फार्माकोपिया, जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया, वो पब्लिश किया था एम भट्टाचार्य एंड कंपनी ने। लेटर ऑन और आने शुरू हुए। सर एक मिनट। लेटर ऑन फिर ये जब होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी बनी एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया उसका बनाने का शुरू किया। तो अब जो स्टैंडर्ड्स थे उसके लिए उन्होंने, एक मिनट कहाँ डिस्टर्ब, तो पहले तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, जो तो ड्रग्स इंक्लूडेड हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में, उनमें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ, ये जो फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें पहली प्रेफरेंस उसको दी गई है, सब नंबर 1। देन जो ड्रग्स इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं लेकिन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए, यूके और जर्मनी, ऑफ लेट इसके अंदर फ्रेंच फार्माकोपिया को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो जो स्टैंडर्ड उसके अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो स्टैंडर्ड लागू होंगे। और फिर तीसरा क्या है उसके अंदर कि ड्रग्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है कि द फार्मूला और लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स displayed in the prescribed manner and such other standards as may be prescribed by the central government। अब मैं बताता हूँ, ये जो थर्ड पार्ट जो इसमें दिया हुआ है ये मेनली आता है कि हम बहुत सारे फॉर्मुलेशन वगैरह, कॉम्बिनेशन वगैरह देखते हैं, अलग अलग टॉनिक देखते हैं, सिरप्स वगैरह देखते हैं, ऑयल्स हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं रूल्स के अंदर। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स बने 1945 में। अब इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन की डेफिनेशन आई 19th of November 1969 में। दिस वाज अंडर रूल 2DD। अब इसमें डेफिनेशन क्या आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूड एनी ड्रग which is recorded in homeopathic provings or therapeutic efficacy of which has been established through long clinical experience as recorded in the literature of India and abroad, and which is prepared according to the techniques of homeopathic pharmacopoeia, homeopathic pharmacy, and covers combinations of ingredients of such homeopathic medicines, but does not include a medicine which is administered by parenteral route. That means injections are not permitted. इस मामले में आपको बता देता हूँ, इस जब ये सेक्शन लाया गया था तो देयर वाज ए कंपनी ऑफ कलकत्ता, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और ऑलमोस्ट 10 साल तक शायद केस चलता रहा, बट कंपनी लॉस्ट दैट पार्ट क्योंकि देयर वाज जो बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी जो होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी वगैरह थी उनकी तरफ से, तो इसलिए वो फिर उनका वो केस हार गए थे। और इसमें क्या है, रूल में पहले तो बता होम्योपैथिक मेडिसिन की डेफिनेशन है, दूसरा रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर मीन्स ए पर्सन who is registered in the central register or a state register of homeopathy। ये रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप आइए। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है कि ये तो हमने बता दिया, अब आता है कि भाई रिफॉर्म्स क्यों और किस लिए, क्या जरूरत है रिफॉर्म्स की, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं maybe I have been a good student or favorable student of late Dr. Diwan Harishchandra। ये हमारे टीचर थे and it was a very good guide।
तो जिस समय होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई थी और ड्रग रूल्स के लिए होम्योपैथी को ड्रग रूल्स के अंदर लाने के लिए जब ड्राफ्ट रूल बने थे तो उन्होंने मेरे को बुलाया, कहने कि तुम आओ क्लिनिक पे मेरे। तो उन्होंने मेरे को एक ड्राफ्ट बिल की प्रिंटेड कॉपी दी और कहा कि भाई ये जो है आप अपने यहाँ उधर ट्रेड के अंदर डिस्कस कर लो, ताकि जो कुछ अमेंडमेंट वगैरह इसके अंदर ज़रूरी है तो आप रिप्रेजेंटेशन भिजवा दो। तो वो जब उन्होंने दिया तो हम तो फिर जो उस वक्त लोकल केमिस्ट वगैरह थे काफ़ी, देयर वर हार्डली 8 और 10। आज तो बहुत अच्छी बात है कि नंबर काफ़ी ज़्यादा है, दिल्ली की एक्सपेंशन भी काफ़ी हुई है। तो सबने बैठ कर के मीटिंग वगैरह करी और देखा कि जो रूल्स प्रपोज थे वो तो इतने ख़तरनाक थे कि शायद है अगले 3-4 साल के अंदर ही होम्योपैथी जो है वो ख़त्म ही हो जाती, इतने स्ट्रिक्ट थे। स्ट्रिक्ट रहने का रीज़न मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे क्योंकि जो ड्राफ्ट किए थे उन्होंने वो सारी की सारी जो है वो लॉबी थी प्राइसिंग ऑफ नॉन होम्योपैथी हुई। तो फिर उनके लिए सजेशन दी गई कि इसको कैसे इम्प्रूव करिए। तो ये सब इम्प्रूवमेंट के बाद में उस पर कई चीज़ें जो है फिर वो एक्सेप्ट हो गई उसके अंदर, फिर हम वर्केबल फॉर्म के अंदर रूल्स अप्लाई हो गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये चेंजेस होती हैं और होती भी रहेंगी। नेक्स्ट स्लाइड अगेन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नाउ अब यहाँ पर हमारे कहने के कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चेंजेस की जरूरत है, ये मेनली आज का टॉपिक जो मैंने रिफॉर्म्स के वर्ड दिया था। देखिए कि होम्योपैथिक सिस्टम की रिकग्निशन के लिए डॉक्टर केजी सक्सेना और साथियों की बहुत ज़बरदस्त कोशिश रही है। उनका हार्ड वर्क है जिसकी वजह से आज हम आप लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ प्रोफेशन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट कुछ पहले से बढ़ चुकी है। लेकिन अब क्या था कि डॉक्टर केजी सक्सेना जो है वो एडवाइस, और उसके पहले क्या था उनके एफर्ट के बाद में जिस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन वगैरह गया थे, मिस्टर गयासुद्दीन थे, उनके थ्रू मूव करके फिर एक होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी वगैरह, होम्योपैथिक इंक्वायरी कमेटी बनी जिसने 1949 में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करी। और उसके बाद में फिर सिलसिला शुरू हुआ कि अलग अलग रेगुलेशंस क्या करने हैं, होम्योपैथिक काउंसिल होनी चाहिए, रिसर्च का प्रोविजन होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के ड्रग्स का स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये सब दे वर ऑल पार्ट ऑफ दैट होम्योपैथिक इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेशंस। क्या पोजीशन है कि एडवाइजरी कमेटी बन गई डॉक्टर अपने केजी सक्सेना की चेयरमैनशिप के अंदर, और उन्होंने सेंट्रल काउंसिल के रिसर्च वगैरह के लिए वेरियस जो सिस्टम से उसके लिए वर्क करना शुरू किया। तो जो क्योंकि ये लोग देखिए टेक्निकल लोग जो है देवर ऑल बेसिकली देवर ऑल फिजिशियंस। तो ट्रेड की इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम आपको इसके अलावा जी क्या चीज, जो रेगुलेशंस जो थे उसके लिए मेरा अपना इंप्रेशन ये है कि वो एक्ट में अंदर जब डेफिनेशन नहीं थी, रूल्स के अंदर आई, तो वो शायद इसके बारे में एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। तो अब आता हूँ कि नेक्स्ट में क्या फ़र्क क्या है, तो वो मैं आगे आपको सब्सिक्वेंट स्लीव्स के अंदर बताता हूँ। ये मैंने कहा कि वो उस समय कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं या कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हो सकती है इंडिया के होम्योपैथी के अगेंस्ट, वो चीज़ें पॉसिबली वो उस समय विजुअलाइज नहीं कर पाए। यानी हाँ, बट उन्होंने जितनी एफर्ट करी है उसके लिए तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दीपक नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं यहाँ पर ही बताता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कैसे आ रहा है। जो एक्ट है, एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी ड्रग इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और जो एलोपैथिक ड्रग्स है उसके नाम में सिर्फ ड्रग की डेफिनेशन भी दी हुई है। ये 1955 में आ गई थी, और 1964 में जो है ये आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी के बारे में आया।
बट इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ था 1982 में, और वहाँ पर डेफिनेशन को एक्ट के अंदर आ गया, और एक्ट के साथ साथ क्या पड़ा कि आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए एक सेपरेट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो गया, विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 33C ऑफ द एक्ट। और जो दूसरा था एलोपैथिक के लिए DTAB कहलाता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये कंस्टिट्यूट हुआ था सेक्शन 5 के अंदर। लेकिन अब कहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है? There is no homeopathic drugs technical advisory board. Only a subcommittee was constituted. सब कमेटी में था के वो रिकमेंडेशन अपनी जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को देगी, लेकिन क्योंकि आगे वहाँ पर मेन जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो तो बॉयज हैं होम्योपैथी के अगेंस्ट, इसकी वजह से सजेशंस को कंसिडरेशन बहुत कमती दिया गया। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए ग्रेजुअली वो कहते हैं ना, नेसेसिटी दी मदर ऑफ इन्वेंशन। धीरे धीरे करके प्रोफेशन को भी, ट्रेड को पता लगना शुरू हुआ कि कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है। तो अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके साथ में मैं कनेक्टेड हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया गया, हमारी काफ़ी कोशिश के बाद में तो ये आया कि एटलीस्ट कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड से जो है वो इस कमेटी के अंदर लेना शुरू किया उन्होंने। और ये हम लोगों का कहना था कि भी जो भी होम्योपैथिक के अंदर जब आयुष मिनिस्ट्री बन गई तो हम लोगों ने ये रिकमेंड किया, बार बार कोशिश की कि भी जो मैटर होम्योपैथी से रिलेटेड है उसको हेल्थ मिनिस्ट्री में ना भेजा जाए, सीधा जो है मैटर ये डिसाइड हो जाने चाहिए आयुष मिनिस्ट्री के लेवल पर ही। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जो सब कमेटी थी उसको डेजिग्नेशन चेंज करके उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी ऑन होम्योपैथी बना दिया, तो ताकि ये एक्सपर्ट कमेटी जो रिपोर्ट करे मिनिस्टर ऑफ आयुष को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फर्दर डाउनग्रेड हो गया। ये तो एक्सपर्ट कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन अपनी देनी, तो वो जो है जो आसुटेप कहता है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी का जो ड्रग टेक्निकल बोर्ड हुआ, वो इस सब कमेटी ने उसको रिपोर्ट करना। और यहाँ पर भी क्या है कि जो आयुर्वेदिक लॉबी है वो काफ़ी पावरफुल है। इस पावरफुल होने की वजह से उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से, और जो ड्रग मामले के ड्रग्स कंट्रोलर थे, वाज द एडवाइजर इन होम्योपैथी। तो इनफैक्ट एक बार वन ऑफ द मीटिंग्स उसमें मेरा जाना हुआ था, तो उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा कि जी आप ये जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जो रिकमेंडेशन जा रही हैं उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में फर्दर क्या प्रोग्रेस है। तो व्हाट ही सेड कहना के लोग since homeopathic medicines they contain, no, they are not only from the vegetable kingdom, they are containing chemicals as well as other animal origin की चीज़ें हैं। तो ये जो मैटर सारा का सारा जो है, इनफैक्ट हम लोग तो कॉम्पिटेंट है नहीं डील करने के लिए, तो ये मैटर जो है ये तो सारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेवल के ऊपर ही, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ड्रग जनरल कंट्रोलर कहलाता है ऑफ इंडिया, उसको तो वही डील कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज की हालत ये हो रही है कि आयुष के अंदर अगर हम देखें जो भी कोई प्रोग्रेस हो रही है, तो वहाँ पर जैसे होम्योपैथी वर्ड में आयुष में लास्ट में आता है, तो प्रेजेंटली वर्किंग, अगर हमें कहने में कोई शर्म नहीं आते कि इट इज मोर वर्किंग राइट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नॉट आयुष। वो क्या है कि आयुर्वेदिक लॉबी जो है वो काफ़ी पावरफुल है, इसलिए आज और भी ज़रूरी हो गया है कि डेफिनीशन ऑफ होम्योपैथी जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, और सेपरेट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड फॉर होम्योपैथी ये होना ज़रूरी है। ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तब जाकर के हमारी ग्रोथ इसमें और हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर यह है कि देखिए जो रूल्स बने हुए हैं उसके अंदर ये वेरियस रूल्स हैं जहाँ जाके जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन को कवर करते हैं।
मैंने अभी क्या है कि एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के रूल्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट है। और क्या पोजिशन है कि डिफरेंट थिंग में क्या है कि होम्योपैथी के भी अलग, दे आर ऑल स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है। अब जैसे प्रीलिमिनरी रूल 2 के अंदर आ जाता है, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन का है, रूल 30A 32A में है। रूल 67 है ये कि सेल से गवर्निंग है। 85 जो मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्निंग है। 106A और B ये लेबलिंग है, पैकिंग एंड लेबलिंग से है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर आगे शेड्यूल्स हैं कि कौन से फॉर्म जो है दिए जाएंगे एप्लीकेशन के लिए, किसमें लाइसेंसेस वगैरह बनेंगे। तो एक शेड्यूल के होता है, शेड्यूल के में क्या होता है, किन चीज़ों को एग्जाम्पशन होती है, कहाँ का एग्जाम्पशन होती है वो कवर होता है। और शेड्यूल M के अंदर है GMP स्टैंडर्ड्स, ये कि ये 2006 के अंदर ऑफिशियली हुए हैं, लेकिन 2009 के अंदर हमें याद है हमने KML के अंदर एक रखा था लेक्चर। तो वन ऑफ आवर यानी स्पीकर जिनको हमने बुलाया था, प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथिक कॉलेज, तो बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ब्रीफिंग जरूर किया था कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं उसके लिए। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब आता है रूल नंबर, इसमें अब मैं पहले रूल पर ही ला रहा हूँ, पार्ट 1 जो कि प्रीलिमिनरी में है। तो यहाँ देखिए रूल 2EAS के अंदर रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर डिफाइन किया गया है, who is a person who is registered in the central register of a state or state register of homeopathy. And 2EE part 2 रूल, और इसके आप इस तरीके सेक्शन 4 पार्ट 2 एंड पार्ट 4, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या आता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन in a medical register of a state meant for registration of persons practicing modern scientific system of medicine, within bracket excluding the homeopathic system of medicine. And similar provisions they have been given for dentists. So वहाँ पर भी है, either should be registered or he should be eligible for registration. अब इसका जो मेरे दिमाग में आता है मैं सबसे आपसे अगले में बात करता हूँ। और रूल, अच्छा फिर क्या है कि रूल 2E जो है डबल ई विदिन सेक्शन 3 है, इसमें क्या कहते हैं कि पर्सन नॉट फॉलोइंग इन दी सब क्लॉज 1 विच हो के भी के कौन से रजिस्टर्ड होंगे, और सब क्लॉज 2 जिसमें कि ये डिफाइन किया गया कि उन दोनों में अगर जो एलिजिबल नहीं है उनके लिए भी क्या किया, दे आर इफ एट ऑल जो कि दे डू नॉट फॉल अंडर अबव रूल्स, then if at all they are declared by a general or a specific order by state government in this behalf as a person practicing modern scientific system of medicine for the purpose of this act. अब ये इस रूल का क्या पर्पस है, किस क्लास को एकोमोडेट करने के लिए किया गया है, इसके बारे में कुछ भी अंदाजे लगाना गलत है। बट ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सर्टेन पर्सन कि जहाँ कैटेगरी जिनको की गवर्नमेंट फेवर करना चाहती हो, जो वहां से एक्ट किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। नेक्स्ट, यस, अब नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ध्यान से आप सुनिए। नाउ इन केस वी ट्राई टू रीड इन बिटवीन द अबव क्लॉजेस, वी कैन इजीली फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच टू होम्योपैथी। क्या डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो क्या नजर आता है? Practical implementation of these rules mean that an intern in allopathy can be considered as a competent person. A homeopathy student who has passed his or her BHMS examination but is not registered in the state or central register due to the fact that he or she has not completed the internship cannot be considered as an eligible competent person for the purpose of these rules. ना अब क्या है कि लेटेस्ट जो डेवलपमेंट चल रही है, अभी 2 जुलाई को एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है। ऑफ कोर्स देयर आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस प्रपोजल्स हैं, तो वहाँ पर अब आ रहा है क्या कि देखिए दे हैव के रजिस्टर्ड, इसमें जो आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी सिस्टम के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसमें भी लिया गया कि रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन ए मेडिकल रजिस्टर ऑफ ए स्टेट मेंट फॉर registration of purpose
person in the Ayurveda or Siddha systems. अब यहाँ पर अब देखिए अगेन कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है कि यहाँ पर भी होम्योपैथी को एक तरफ कर दिया गया, एक तरफ अलग है। ये वशिष्ठ जी को कही, मैं आई विल डिस्कस इन दैट पार्ट फर्दर। अब कहता है कि इन दी nowhere in the drug rules homeopathic system medicine has been given the status of scientific system. मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम आप एलोपैथी के लिए कर रहे हैं ना। होम्योपैथिक सिस्टम जो कि रिकॉग्नाइज ही हुआ है होम्योपैथी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद में, उसको साइंटिफिक सिस्टम नहीं गिना जा रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। जो होम्योपैथिक इंक्वायरी कमेटी 1949 की रिपोर्ट थी, उसी के बेसिस के ऊपर सीसीएच बनी है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी बनी, सीसीआरएच बनी, ड्रग्स एंड रेगुलेशन वगैरह उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर हो रहे हैं। बट यहाँ पर वर्ड साइंटिफिक जो है वो मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो सिर्फ एलोपैथी को ही है और किसी को नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आता है रेगुलेशंस फॉर सेल। अब ये आता है पार्ट 6 एंड 6A में। पार्ट 6 के अंदर तो एलोपैथिक मेडिसिन को कवर होता है और 6A के अंदर आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। ना इंटरेस्टिंग इनफ, आयुर्वेदिक या सिद्धा यूनानी मेडिसिन के लिए आपको सेल के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी दुकान खोल करके इसको इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। काफ़ी साल हो गए, मेरी एक बात हुई थी, एक बार मैंने जिक्र किया था वन ऑफ द ड्रग्स कंट्रोलर एंड हु हैपेंड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ माय कजिन्स। मेरे कजिन जो थे उनका एक स्टूडेंट था फ्रॉम BHE। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा एक बात है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए आपने कोई सेल का लाइसेंस का सिस्टम क्यों नहीं रखा हुआ है? तो रिप्लाई उन्होंने कहते हैं, लुक फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर आइटम्स जो कि किराना शॉप के ऊपर मिलते हैं, ये सारे के सारे आयुर्वेदिक लिटरेचर के अंदर हैं, इसलिए इनके लिए रूल्स बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना वो पॉसिबल ही नहीं है। आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो है। मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी मेडिसिन आ रही हैं? मेनली जो कॉम्बिनेशन है, पेटेंट्स है जिनके ऊपर चल रहा है, फिर सारा का सारा तो दैट इंडस्ट्री इज डोमिनेटिंग। उसके लिए उन्होंने ज़रूर पैकेजिंग वगैरह का क्वालिटी के लिए वो सब उसके अंदर अब किया जा रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या हो रहा है कि हम लोग जो है, अनदर प्रॉब्लम क्या आती है कि होम्योपैथी की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसको एक, आप सब लोग जानते हैं कि आप थोड़ा भी रिमोट एरिया में जाइए, जो लोग अपने बड़े शहरों के अंदर हैं उनको तो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि उनमें भी रेयर मेडिसिन के लिए उनको बड़े शहरों के अंदर भी कई बार धक्के खाने पड़ते हैं वैसे उधर तक। तो इस वजह से कि होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जिसका मैंने बताया कि मैं आई बीन कनेक्टेड, तो दे हैव बीन मेकिंग एफर्ट्स, कंटिन्यूस एफर्ट्स कि वी शुड बी द रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं, दे शुड बी अलाउड टू हैव सेल्स काउंटर्स इन देयर प्रेमिसेस। पर्पज ये था कि हमारे के होम्योपैथिक मेडिसिन की कदर डिफरेंट इंडिविजुअल मेडिसिन की या डिफरेंट पोटेंसीज की, उसके बारे में कौन सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कौन सी नहीं होती है, तो उसको रखने के लिए एक जो होम्योपैथ है उसको उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने दे मेड सम अमेंडमेंट्स। पर्पज ये था कि जो रिमोटेस्ट पार्ट पे भी हैं वहाँ तक मेडिसिन की, तो शेड्यूल के है उसमें आता है। शेड्यूल के अंदर उन्होंने, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्या करी कि थोड़ा मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी, ताकि भी एंड देवर आल्सो इक्वली इंटरेस्टेड कि भी उनकी सेल के लिए उनका यूनिट बढ़ने चाहिए, आउटलेट बढ़ने चाहिए। तो शेड्यूल के अंदर उन्होंने एलोपैथिक केमिस्ट जो थे उनको अलाउ कर दिया कि आप ओरिजिनल सील पैकिंग जो है वो आप रख सकते हैं, उसको उनका स्टोरेज आप सेपरेट होगा। मगर प्रैक्टिकली अगर आप आइए तो इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, सिवाय कुछ आप OTC प्रोडक्ट्स के कुछ बायोकेमिकल मेडिसिन लाइक कैल्केरियाफॉस है, कार्डिफॉस है, नेट्रोम्योर वगैरह, वो भी जिस पोटेंशियल के अंदर ज़्यादा डिमांड होती है वो
या सर्टेन टॉनिक्स, इस किस्म के आइटम जो थे OTC प्रोडक्ट्स में हम काउंट करेंगे इनको सबको। तो ये तो अवेलेबल हो गए, लेकिन थोड़ा भी मेडिसिन रेयर है या थोड़ी पोटेंसी रेयर है, उसकी अवेलेबिलिटी इन जगह से नहीं हो पाती है। आपको कॉम्बिनेशन वेरियस है, जैसे मैं बताया सिनेरियर आपको मिल जाएगी, कैलकेरेफॉस मिल जाएगा, आपको बर्बेरिस वगैरह मिल जाएगा, थूजा मिल जाएगा। तो ये तो हैं, मगर अगर आपको बर्बेरिस एक्यूफिलियम चाहिए तो वो नहीं मिलेगा वहाँ पर। बर्बेरिस वल्गरिस मिल जाएगा लेकिन एक्यूफिलियम नहीं मिलेगा। लाइकवाइज एकोनेट नेपेलिस चाहिए, वो फिर भी दिलवा देंगे, लेकिन एकोनेट फेरोक्स अगर चाहिए तो नहीं मिलेगा। एंड सो ऑन सो फॉर्थ, देयर विद नंबर ऑफ मेडिसिन यू कैन काउंट। फोलिक एसिड जो कि ज्यादा डिमांड के अंदर है वो तो मिल जाती है और नहीं मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, यस। अच्छा, इस चीज के लिए एसोसिएशन क्योंकि बराबर प्रैक्टिस कोशिश में लगी हुई है, तो पहले तो ये था कि भी प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन में, सेल कंडीशन के अंदर आता है सर, ये रूल 67 के अंदर, provided that no registered homeopathic medical practitioner who is practicing homeopathy in the premises where homeopathic medicines are sold shall deal in homeopathic medicine. That means एक premises के अंदर अगर डॉक्टर है तो वो सेल नहीं करेगा। ये उन्होंने कंडीशन लगा रखी है। हमने तो ये प्रपोजल दी थी कि भाई किसी के पास में स्पेस बड़ा है, अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हो तो लेट हिम हैव अ सेपरेट सेल्स काउंटर, उसको इतना परमिशन होनी चाहिए। अब जो प्रपोजल अब नई आई है, जो कि 2 जुलाई को अमेंडमेंट जो ड्राफ्ट रूल आए हैं, उसके उन्होंने ये प्रपोज किया है कि मॉडिफाई ऐसे किया कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी इन द प्रेमिसेस licensed under section under 2C and 2D shall only prescribe medicines to his patients and not take part in the retail sale of homeopathic medicines. अब इतना उन्होंने कर दिया कि वहां पर प्रेस्क्राइब तो कर दोगे आप, सेल नहीं करोगे। अब ये है एनीहाउ लेट अस होप के भी किस हद तक ये कंप्लाई विद या इसके इम्प्लीकेशन कहते हैं कि और लूप ना निकले इसके अंदर। अभी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा इसका वो भी पता नहीं है, तो बाद में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रूल 106A और 106B ये हैं लेबलिंग और पैकेजिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है रूल 106A पार्ट C, नो होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेनिंग ए सिंगल इंग्रेडिएंट shall bear a proprietary name on its label। ये है। अब यहाँ पर एलोपैथी के अंदर अलाउड है, होम्योपैथी में नहीं है। टिपिकल एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, एस्पिरिन जैसे है, इसे सिंगल ड्रग, मगर वो आपको इकोस्पिरिन के नाम से मिलेगी, आपको डिस्पिरिन के नाम से मिलेगी, बट थोड़ा सा परसेंटेज के अंदर फर्क होता है मेरे ख्याल है, लेकिन ये चीज़ अवेलेबल है। लाइकवाइज आप देखिए कि एंजाइटी के लिए जो ड्रग इस्तेमाल करी जाती हैं, मेनली उनका इंग्रेडिएंट डायज़ेपाम होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट नाम से उसको ब्रांडिंग की जाती है। यहाँ पर ये, अब यहाँ पर हमारा एक चीज़ है इंडिविजुअली, मैंने बताया कि अगर किसी ने ट्रेड नेम से करना तो करें, लेट अस एनकरेज द कंपटीशन, जिसकी क्वालिटी होगी वो अपना चलेगा आगे। बट दिस माय इंडिविजुअल व्यू, इट शुड नॉट बी टेकन एज ए कलेक्टिव व्यू। कंपटीशन देखिए, इंडस्ट्री कोई भी हो, ट्रेड हो, ये कंपटीशन में ग्रो करती है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी वहीं आता है। मोनोपोली होगी तो कुछ नहीं होता है। रूल 106B है, ये बहुत कंटेंशियस है, शुरू से जब से बना है 94 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था ये, तब से अभी तक इसमें बराबर कोर्ट केसेस वगैरह भी होते रहते हैं, चलते चले आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स ने डिफरेंट तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। इसमें मेनली क्या है कि मेडिसिन कोई अगर अल्कोहल परसेंटेज अगर उसमें 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल का है, तो वो आप 30 ml से बड़े पैकिंग के अंदर
इंडिविजुअल को नहीं दे सकते हैं, और हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी को नॉट मोर देन 100 ml। तो यहाँ पर एक चीज आ जाती है, इसके बारे में देखिए जो प्रॉब्लम आती है वो है कि बहुत सारे अब है, फॉर एग्जाम्पल साइजिन मदर टिंचर है, सिफ्लेंडा इंडिका मदर टिंचर है। ये जस्ट मैं गिविंग वन एग्जांपल, सिफ्लेंडा इंडिका मदर टिंचर की CCRH की स्टडी थी जिसमें था कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए 1 ड्रॉप पर बॉडी kg वेट पर डे शुड बी द डोज, ऑप्टिमम डोज। ये CCRH की रिकमेंडेशन थी और डॉक्टर DP रस्तोगी जब थे, ये उस वक्त की स्टडी थी। अब आप मान लीजिए किसी बंदे का वेट अगर 60 kg है तो उसको 60 ड्रॉप तो पर डे की जरूरत पड़ेगी। और डायबिटीज जैसी से एकदम से तो ओवरनाइट तो ठीक होगी। लाइकवाइज कैटेगस इज अगेन इज कंसिडर्ड एज ए गुड हार्ट टॉनिक, बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर बहुत छोटे पैकिंग के अंदर होगा तो कंज्यूमर के लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। थोड़ा बड़ा पैकिंग अगर अलाउ कर दी जाए तो कस्टमर को जो आइटम लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करनी होती हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी फिर हो जाता है। Anyhow, that is again a contentious part है। डिफरेंट स्टेट्स हैं अपना अपना तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही हैं आर्गूमेंट्स इसके लिए, बोथ फॉर एज वेल एज अगेंस्ट इट, देयर आर मेनी आर्गूमेंट्स। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सपायरी डेट, जब GMP रेगुलेशंस बने तो उसमें क्या देखा कि एक्सपायरी डेट बहुत चीज़ों पे तो खैर क्या रूम का क्या होगा कि एयर क्वालिटी का फिल्टर क्या होगा और सामान क्या क्या होंगे, ये सारे के सारे उसके अंदर डिफाइन किए गए हैं। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा कंटेंशन था कि 60 मंथ्स की डेट ऑफ एक्सपायरी फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये चीज़ ऐसी है कि ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है। एलोपैथी के अंदर तो सीरा वगैरह है, अलग अलग टॉनिक्स हैं, सबकी आफ्टर प्रॉपर स्टडी उनकी एक्सपायरी डेट करी गई है। यहाँ पर एक ब्लैंकेट सर्विस बना दिया गया, उसके ऊपर एसोसिएशन ने काफ़ी एफर्ट करी, 3 साल लग गए, जिसके बाद में डायलिशंस पे से तो और बैक पोटेंसी पे से तो ये एक्सपायरी डेट की प्रोविजन खत्म हो गई। बाकी इसके साथ में और भी इश्यूज हैं जिनके बारे में एक प्रॉपर स्टडी होनी ज़रूरी है, तभी हम करें। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मेरा फीलिंग होती है कि मदर टिंचर जिनकी परसेंटेज जिनकी 80% के 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल है, उसकी एक्सपायरी डेट भी 5 साल। और जो एक्वा बेस्ड है, फॉर एग्जांपल एसिड फॉस, वो तो एक्वा बेस्ड है, तो वो उसकी लाइफ कहाँ तक रहेगी 5 साल तक, सेडिमेंटेशन उसके अंदर आ जाता है बराबर। और बहुत टिंचर जैसे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 41% अल्कोहल का जो मदर टिंचर है उसकी शेल्फ लाइफ उतनी तो नहीं हो सकती जितनी 91% की होगी। तो प्रॉपर स्टडी के बाद ही होना चाहिए। फिर अनदर एक मैं यहाँ सबके सामने क्या जिक्र करूँ, यानी जिस चीज़ को प्रॉपरली कभी नहीं देखा गया, लैक्टोज है जिसके से हम लोग बायोकेमिक टैबलेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, या ड्रॉबिल्स कहिए, डिस्केट्स कहिए, इनकी शेल्फ लाइफ का क्या है। लैक्टोज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब आई है तो उसकी एक्सपायरी 2 साल की लिखी जाती है। अब 2 साल के बाद में किसी के पास में 2.25 साल के अंदर या 2 साल के अंदर अंदर आ गया, उससे बायोकेमिक टैबलेट बनी तो उसकी एक्सपायरी 5 साल हो गई। क्या लॉजिक है? मेरा ख्याल है हर कोई शायद सोच सकता होगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई उसमें एक्सपर्ट कमेटी होकर, जैसे मैंने पहले बताया कि इनको रिपोर्ट अपनी बना करके सबमिट करनी होती थी आसू DTAB को, दैट मीन आयुर्वेदिक यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इनकी 3 मीटिंग हुई, 21/8/19 को, 18/12/19 को, और फिर 18/3/2020 में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब मैं थोड़ा सा जिस्ट बता देता हूँ इसके रिकमेंडेशन की, अभी सारी की सारी वो देना पॉसिबल नहीं है। देखिए, इस कमेटी ने ये कहा कि भी रूल्स हैं, दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, तो बेटर ये है कि इट शुड बी ब्रॉट टुगेदर इन सीक्वेंस एज ए चैप्टर सेपरेट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर एक इंडेक्स है इंक्लूडिंग जिसमें कि पॉइजनस एंड टॉक्सिक ड्रग्स, और ये रिकमेंड किया गया कि भी होम्योपैथिक फार्माकोपी कमेटीज के मामले में उसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। स्नेक पॉइजन्स हैं, स्नेक पॉइजन्स में उनमें सबके बारे में फार्माकोपिया के अंदर रिकमेंडेशन है कि 6x पोटेंसी से कमती ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू वन कंपनी, उन्होंने एक बार एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने देखा जब उसका तो उसके अंदर लैकेसिस 4x इस्तेमाल किया गया था। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन पुट अप किया, लिखा मैंने कि भाई हाउ इज इट कि जब फार्माकोपिया तो अलाउ करता नहीं है, तो आपने इसको जो है 4x में कैसे आप इसको दे रहे हैं। पहले तो एक जवाब ये आया कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो कि आपस में एक दूसरे को एंटीडोट कर देते हैं। अगर आपस में एंटीडोट करते हैं तो उनकी जरूरत क्या है भाई। मैंने लेटर ऑन एक कुछ और एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, बट बाद में मैंने सुना है कि उन्होंने उस पर से लैकेसिस 4x को हटा दिया। अब 6x दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं वो शायद उस कंपनी को पता होगा। मेरी पोजीशन अनफॉर्चुनेटली और वट एवर इट इज एक ऐसी है कि मैं अभी वशीष जी ने लिखा है, हाँ तो मेरे उसी पॉइंट में लिखा है HF इलेक्ट्रोस की एक्सपायरी 3 साल है, बायोकेमिक की 5 साल। देखो वशीष जी का मैंने चैट बॉक्स में भी देखा है। आई मीन बहुत करेक्ट अप्रोच है इनकी वशीष जी की, मोस्ट अप्रिशिएट। अच्छा, फिर और भी इसके अंदर है कि भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल हो, फॉर्मुलेशन हो, प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है, इंक्लूजन ऑफ वेरियस स्टडीज, मदर टिंचर्स की TLC स्टडी कराती है, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स, डिसइंटीग्रेशन टाइम, ये सब फार्माकोपिया कमेटी की तरफ से डिसीजन होना चाहिए। ये एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस ग्रुप में ये भी थोड़ा सा रिकमेंडेशन दी थी, कुछ और भी हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि एक वर्किंग ग्रुप चाहिए जो कि रिकमेंडेशन और मैटर करे WHO अकॉर्डिंग GMP रेगुलेशंस के मुताबिक, और ये इसमें CSRH और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडस्ट्री। और उस मीटिंग के अंदर डॉक्टर प्रकाश जोशी जो कि मेडिसिन के हैं, पीछे लास्ट वीक में उनका प्रेजेंटेशन थी, तो उनका नाम प्रपोज किया गया था। लेकिन उसके बाद में आगे क्या डेवलपमेंट है कोई, ये अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। एक ही अच्छी रिकमेंडेशन है कि बैक पोटेंसी जो है वो इंपोर्ट करने की बजाय जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एनकरेज करें कि दे शुड डेवलप दी बैक पोटेंसीज। फिर था डेटाबेस है होम्योपैथिक यूनिट्स का। एक और भी था कि जो वेरियस कॉम्बिनेशन वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके लिए देयर शुड बी कॉमन फॉर्मुलेशंस। फिर ब्रांड नेम अलग अलग कोई सा भी करो, कुछ भी करो, तो देयर शुड बी सम फॉर्मुलेशन। वो सिस्टम शायद अभी तक इन प्रपोजल में है, क्योंकि ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी का काम था, उनका था कि भी हम इसको टेकअप करेंगे, सारा का सारा बनाएंगे, लेकिन फर्दर कोई प्रोग्रेस के बारे में हमको इसका अभी तक मालूम नहीं है। और एक और भी था कि एक तरफ तो गवर्नमेंट का प्रपोजल है इंटीग्रेशन की तरफ, तो इंटीग्रेशन में आता है कि जब कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन आप बना रहे तो सब सिस्टम्स की डेफिनेशन है, रेगुलेशन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप को बताइए, ताकि हर एक, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक कोई भी सिस्टम हो, एक पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन सब जगह एक सा होना चाहिए। मगर ग्राउंड रियलिटी अनफॉर्चुनेटली आज की ये है कि डोमिनेशन आयुर्वेदा लॉबी की ज़्यादा है इसमें, और होम्योपैथिक रिकमेंडेशंस की जो होती है तो उनको कोई देगा गिवन ए लो प्रायोरिटी। दिस इज द ग्राउंड अनफॉर्चुनेट रियलिटी। नेक्स्ट प्लीज। So I come to the conclusion of my presentation. इससे मेरा जो फीलिंग है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। इट्स हाई टाइम that when all stakeholders होम्योपैथी, स्टेक होल्डर में सबको जब कह रहा हूँ तो I include industry,
ट्रेड एंड द प्रोफेशन, 3 यूनिट्स हैं। So, एक तो वी आर नॉट टू बिकम इग्नोरेंट कि साहब अच्छा ये भी रेगुलेशन है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 2011 के अंदर जब लीगा की यहाँ पर इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी 2011 के अंदर, तो मेरा एक प्रेजेंटेशन था वहाँ पर। उस वक्त मैंने लिखा था कि क्रिटिकल स्टडी ऑफ जीएमपी रेगुलेशंस। तो उसके अंदर मैंने कई चीज़ें उसके अंदर पॉइंट आउट करी जो कि ट्रांजैक्शन के अंदर पब्लिश भी हैं। तो वहाँ पर उस वक्त में जो भी लोग बैठे हुए थे, और मेरा अपना ख्याल है कि शायद डॉक्टर प्रकाश जोशी उसको प्रिजाइड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे उस सेशन को। मेरी उसमें ऑब्जर्वेशन मेरी थी कि बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के लोगों को भी उन रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, उस क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और दे वर ऑल इग्नोरेंट। तो मेरा सबसे निवेदन है कि चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो या प्रोफेशन हो, इट्स हाई टाइम के वी पीपल शुड बिकम प्रोएक्टिव। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अपने आप को उस लेवल में रखना है, ये हम सबको प्रोएक्टिव रोल अपना रखना चाहिए, एंड वी शुड शेयर एंड प्रोसीड फर्दर। आप यहीं पर मेरा कहना है कि हमारे क्या होना चाहिए कि जो भी अभी भी देखिए मैंने जो डिस्कस किया है वो बहुत थोड़ा है। अगर हम वेरियस रेगुलेशंस को, एलोपैथी में क्या फैसिलिटी और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, होम्योपैथी में क्या है, आयुर्वेदा के अंदर क्या है, आयुर्वेद यूनानी के अंदर, तो हमको अगर देखें तो हमको कोशिश सारी होनी चाहिए कि देयर शुड बी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको मैं बोलता हूँ। अगर इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो होम्योपैथिक ट्रेड है, इंडस्ट्री है, ये सब हम लोग को ग्रोथ का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ये मेरा अपना व्यू है। कलेक्टिव अप्रोच हम लोग को सबको रखना है, उससे जाकर के होगा तभी हमारा होम्योपैथिक सिस्टम भी जो है उसकी इम्पोर्टेंस एक मेन स्ट्रीम में जाएगी हेल्थ केयर में, वहाँ पर आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा ख्याल है मैंने जितना टाइम शायद अलॉटेड था, विद इन दैट टाइम मेरा ख्याल है मैंने मैनेज कर लिया है। आगे नाउ डॉक्टर दीपक। जी सर। डॉक्टर हिमानी। Thank you so much, sir, for an amazing session. Sir, you have beautifully shared your valuable experiences with all of us, and thank you so much for joining and enlightening us with your knowledge. And it was very informative. I'm pretty sure the precious knowledge that Dr. Aaron Bahi, sir, gave us will definitely help each one of us in our future endeavors. Thank you once again, sir, for joining us. Now we are open to question and answers. So kindly ask away your queries. You can post them in the chat box also. So we had a query. Homeopathy medicines have expiry date now. Do they really expire, or can they be used beyond the expiry date? Well, it's a very interesting question. And let me tell you, once there was an occasion to meet a chief chemist of the HMS. So some lady, I'm forgetting the name. And I asked her, okay, what have you to say? What are your individual views regarding the expiry date? And what she told me is she's not bothering to see the date, and in her own family, she's using the medicines whether the dates have been expired or not. That was her view. Personally, I feel ग्रेजुअली क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड तो सेट देते हैं इसके लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो होता है कि शायद टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, ज़्यादा कैसे होगा। पहले देखिए जर्मन कार्स अगर होती थी, उनकी लाइफ कुछ और होती थी। अब धीरे करके जो जापानीज कार आई, उनकी स्टैंडर्ड कुछ और रह गए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अब यानी पहले तो होता था कि आप पे कोई भी चीज़ है तो उसका कितने, कहते हैं पुरानी कहावत होती थी कि चीज़ बने तो ऐसे बने कि दादा इस्तेमाल करे पोता भरते, उसको दादा बनाया पोता खर्च करे, इस्तेमाल करे, मतलब इतना लाइफ होनी चाहिए। आज तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के में जो है, जो आपको वारंटी वगैरह भी होती है 1 साल से ज़्यादा तो होती नहीं किसी में भी, बड़ी बड़ी चीज़ मशीनरी के अंदर भी।
छोटी चीज़ों की बात तो और है। और मैं नहीं कह सकता, आजकल थर्मल स्कैनर्स वगैरह जिन लोगों ने इस्तेमाल करते होंगे, तो मेरा तो अपना इंप्रेशन है कि ये क्वालिटी कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है इनका। एक्सपायरी डेट, पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो एक और भी है। अब फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन डे टू यूज आइटम जिसको कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स करते हैं, तो मैंने तो अपनी अपनी होम्योपैथिक कंपनीज भी जो बनाती हैं, एक मेरी एक अपनी आदत ज़रूर है कि मैं बजाय फॉरेन कंपनी के, मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट अगर है, अगर हमारी इंडियन कंपनी बना रही है तो मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ। और उसमें भी अगर वो कंपनी ऐसी जो कि होम्योपैथिक डेट से कनेक्टेड है, तो मेरी चॉइस होती है उसको इस्तेमाल करने की। और मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो शेविंग क्रीम कहिए या वो या यानी टूथपेस्ट कहिए, एक्सपायरी डेट के बाद के मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। सो मतलब आई वुड से कि until unless we scientifically evaluate, only then we should keep that restriction. Storage condition defined, they should be defined properly. वो प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि बायोलॉजिकल फॉर्म के अंदर होते हैं, एलोपैथी के अंदर तो काफी लगता है क्लियर, होम्योपैथी के अंदर मेरे को तो उसकी कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी नजर नहीं आती है। बाकी यहाँ पर इस मामले में हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, फाइंडिंग डॉक्टर निशांत त्रिपाठी हियर, और अपने डॉक्टर वशीष जी का मैंने देखा था इसके अंदर, तो ऐसे मुझे नहीं पता, और या जोशी जी इस समय है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, प्रकाश जोशी जी, बट नेवरदलेस अब इनका क्या विचार है ये खुद बताएंगे। Okay, sir. Thank you so much. You have explained beautifully with an example. So next question is, under what provision of our law homeopathic tonics and ointments they are being manufactured? करेक्ट। आपने देखा होगा कि अलग शेड्यूल दिए हुए हैं ना उसके अंदर, शेड्यूल के अंदर जो होम्योपैथिक से स्टैंडर्ड है दिए हुए, उसके अंदर जो थर्ड पार्ट आता है वो उसके अंदर कवर हो जाती है। फर्स्ट पार्ट इज के होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि विच आर मेंशन इन होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया। सेकंड पार्ट आता है जिसके अंदर के which is not mentioned in homeopathic pharmacopy of India but are existing in the other pharmacopoeias like UK का हो, USA का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, वो चीज। बाकी है तो थर्ड पार्ट जो कि कॉम्बिनेशन वगैरह को डील करता है उसके अंदर, तो ये उसके अंदर परमिशन दी जाती है। एंड आई थिंक डॉक्टर निशांत वुड एग्री विद मी। Okay, sir. So one last query. Expiry date of HMS lactose is 3 years. Expiry date of biochemic tissue salts is 5 years. Is it correct? I have already expressed. I am surprised as to how this thing is possible. Lactose expires, then how the medicine will stabilize? I was somehow under the impression that it was 2 years, but I am happy that I have been corrected by Dr. Vashisht. But I had this question myself. So I think we are on the same tune. Okay, sir. So one last question. Explain something about Drugs Price Acts or Order 1966 and its importance today. नहीं देखिए, 1964 का जो है या उसकी 1954 की बात कर रहे हैं? So 1966. 66 Drug Prices Control Order. Is it question about that? Yes, sir. I will repeat the question. Please, sir, please explain something about Drugs Price Acts or Order 1966 and is it today important? Correct. This again is a very good example. I will tell you. That particular order which is being referred to, it has been mainly applicable on allopathic medicine, especially the medicine with life saving. ये उन पर एप्लीकेबल था, और शॉर्टेजेस के टाइम में आप जानते हैं कि जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और मतलब आई वुड पुट इट के देयर वाज व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन केस ऑफ
various drugs like remdesivir and so on and so forth. Now, जब पेंडेमिक फर्स्ट फेज में था कोरोना का, तो उस समय महाराष्ट्र से मैंने कंप्लेंट्स बहुत आई थी कि जहाँ पर आर्सेनिक हेल्प 30 उसकी बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई है। और होम्योपैथी के अंदर उस कमेटी के अंदर वहाँ पर एक कमेटी बनी जहाँ पर मेरे को नॉमिनेट किया गया था एसोसिएशन की तरफ से, मैं वहाँ पर गया था। तो उसमें सिर्फ आर्सेनिक एल्बम का ही जिक्र किया गया और किसी चीज़ का नहीं। तो ये था कि भी क्या हम लोग जो है, और एक्चुअली एलोपैथी में जो अप्लाई होता है तो तकरीबन 18-19 पेजेस का कंप्लीट ऑर्डर है, वो होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर नहीं है। तो जो एडवाइजर है वो ही मेडिसिन के कंट्रोलर प्रेजेंट किया। तो मैंने कहा बड़ी चीज बहुत क्लियर आपको बता देते हैं कि आप जो आर्सेनिक एल्बम का रेफरेंस दे रहे हैं कि आप हमको ये बताइए कि इंडस्ट्री के कौन सी इंडस्ट्री ने इसको एक्सप्लॉइट किया है या कौन सी ट्रेड ने किया है। अगर वो एग्जांपल आपके पास नहीं है तो आप उनको पकड़ सकते हैं। अनस्क्रूपुलस एलिमेंट कोई भी हो, कहीं भी जाके पकड़ का उसका एलिमेंट है, ट्रेड हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। आई वाज वेरी वेरी क्लियर। और and I was ably supported by the representatives from the Ayurveda as well as from the Unani industry. उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक छोटा लाना चाहते हैं, बहुत बड़े रेगुलेशन नहीं होंगे जैसे कि ऑलरेडी एलोपैथी के लिए है, हम आयुष सिस्टम के लिए लाना चाहते हैं और सिर्फ जो है वो होंगे जेनिक ड्रग्स के ऊपर, सिंगल ड्रग्स के ऊपर। तो फिर हमने कहा, मैं कहा आप रेगुलेशन तो लाइए पहले, तभी तो हम कुछ बात करेंगे इसके ऊपर क्या वर्केबल है या नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोरोना का एपिडेमिक हुआ, पेंडेमिक आया तो उसका आपने आर्सेनिक के लिए एक प्राइस कंट्रोल कर दिया। जब आर्सेनिक कर दिया तो फिर जिसको ब्राइने खरीदनी है, एकोनाइट खरीदनी है, इपिका खरीद, तो उसके लिए क्या, उसके लिए अलग रेगुलेशन होगा क्या? तो ये चीज़ें जो है, और जो कॉम्बिनेशन है पेटेंट से, उनके ऊपर कोई उनका रेगुलेशन का कोई इरादा नहीं था। बल्कि उन्होंने क्या कहना कि आप लोग पहले एग्री तो करिए। हमने कहा एग्री हम करेंगे बिल्कुल, हम प्राइसेस के लिए कोई, हम कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि कंज्यूमर को बेनिफिट मिले, लेकिन आप पहले रेगुलेशन लाइए, हम उसके बाद में तब इसके ऊपर जिक्र करेंगे। उसके बाद में मुझे पता नहीं कि उसकी डेलिब्रेशन गवर्नमेंट को क्या गई क्या नहीं गई, लेकिन उसके बाद सेकेंड मीटिंग तो कोई हुई नहीं है। ये अपडेट है। एज सच होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर आज की डेट में वो लागू नहीं है। आयुर्वेदा पे लागू नहीं है, यूनानी पे लागू नहीं है, वो सिद्धा पे, किसी पर लागू नहीं है, सिर्फ एलोपैथी पर है। आपको अगर याद हो तो कुछ साल पहले जब प्लेग का एपिडेमिक हुआ था तो उस वक्त में हालत फॉस्फोरस के लिए थी, फॉस्फोरस 30। उसके लिए लोग इकट्ठे, फिर घर किसी ने सड़क पर बैठ करके गोलियां बना करके उसमें शुरू कर दिया। और इस बार और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको सबको अगर याद होगा तो एस्पिडोस्पर्म मदर इंडिया के लिए सोशल मीडिया ग्रुप के ऊपर बहुत पब्लिसिटी आई थी। और हालत ये थी कि एक इस किस्म की वो रिप्रेजेंटेशन था कि जैसे कि एज इफ एस्पिडोस्पर्मा इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑक्सीजन। तो मुझे मालूम है, ऑफकोर्स हमने ट्रेड वालों के साथ में डिस्कशन हमारा हुआ था, तो मेरे आई एम सिग्नेटरी टू ए प्रेस रिलीज जिसमें हमने इसको क्लैरिफाई किया था कि भी ये तो जो एस्थमेटिक केसेस होते हैं वहाँ रेस्पिरेशन की जहाँ प्रॉब्लम होती है उसमें ये मदद करती है, ऑक्सीजन का लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करती है, बट इट इज नॉट टू बी एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑक्सीजन। तो हमको करना पड़ा क्लैरिफिकेशन इस चीज का। Okay, thank you. So, complain about the mixtures. If I found anything wrong with them, pardon? Where we are going to complain about the mixtures, if we found anything wrong with them. Okay, again, देखिए, you have to see कि you go through the ingredients of that, and you can approach the drugs controller. उसमें अगर कोई चीज मिक्सर में कोई प्रॉब्लम है तो
देखिए इधर इट इज एन अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन और इट्स नॉन अप्रूव्ड। नॉन अप्रूव्ड होगा तो इंडस्ट्री के अगेंस्ट जहाँ पर भी यूनिट को डालेगा तो गवर्नमेंट अपने आप एक्शन लेगी। सर एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ही है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट मेल करें या सबसे पहले कंपनी को मेल करें? चॉइस आपकी है, पहले कंपनी से आप करिए, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो गवर्नमेंट को करिए। सर गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट में? एक मिनट एक मिनट, वो मैं कुछ देर के बाद में, आप आधे घंटे के बाद फोन कर लीजिए। मेन जो ड्रग आधे घंटे अथॉरिटी के उसी में करना है, ड्रग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ से दवाइयों का अप्रूवल मिलता है, ड्रग लाइसेंस बनता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनता है, फॉर्मुलेशन होके होते हैं, वहीं पे आप कंप्लेन कर सकते हैं ड्रग कंट्रोलर को। ठीक है सर। और अगर हम जैसे जो हमारी HPI है या कोई CCRH की यूनिट, इसको भी कॉपी कर सकते हैं? आप कॉपी कर सकते हैं। एक्चुअली HPI तो एक फार्माकोपिया बुक है, बट लेबोरेटरी है HPL, जो PCIM में है अभी, जी फार्माकोपिया फॉर कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी में, जो जी। गाजियाबाद में है। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पे क्या है कि मेन मेडिसिन का टेस्टिंग होता है। हम्म। बट आपने बताया कि कॉम्बिनेशन के बारे में बात करना है, तो कॉम्बिनेशन के बारे में वो कोई जवाब नहीं देंगे, वो ड्रग अथॉरिटी ही जवाब देगा, जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं। जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस या कोई शॉप खोलता है तो ड्रग लाइसेंस जहाँ से इशू होता है, या उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं, वो डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर रिन्यूअल, या फिर कभी भी सडनली वो चेकिंग करते हैं कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। वहीं से मैन्युफैक्चरिंग का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मिलता है। तो मेडिसिन का जो भी रख रखाव है, जितना सब कुछ से रिलेटेड है, वो ड्रग अथॉरिटी ही डील करता है। और जो फार्माकोपिया लेबोरेटरी, वो मेडिसिन की क्वालिटी या मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करता है। तो आपको तो मेन कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन करना है, तो वो उसके लिए ड्रग अथॉरिटी की अप्रूव्ड अ, है कि नहीं है। और सर ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कौन अप्रूवल करता है फाइनली? ये ड्रग अथॉरिटी अप्रूवल करता है। ओके, इसका हाँ जी। हमारे HPL या HPI से कोई रिलेशन नहीं? नहीं, HPI में इंग्रेडिएंट्स का कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है, और HPL जो है वो उनको देखता है कि वो मेडिसिन प्रॉपर हैं कि नहीं है। अगर किसी मेडिसिन कोई भी कंपोजिशन प्रोडक्ट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स इंश्योर कर सकता है। अगर वो डिटेक्टेबल वैल्यू में हैं तो वो HPL करता है। बट वो किस प्रिंसिपल पे हुआ है, ये वो भी डिफाइन नहीं करेंगे। ये ड्रग अथॉरिटी ही बताएगा कि बेस्ड ऑन क्लिनिकल ट्रायल, उसका ट्रायल रिपोर्ट सब कुछ उनके पास ही रिकॉर्ड होता है, वो HPL में नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू जी सर। जी। और डॉक्टर संतोष हैं, उन्होंने भी मेरे जैसे क्वेश्चन पूछा है, एज पर होम्योपैथिक लॉ नो कॉम्बिनेशन अलाउड, तो फिर ड्रग अथॉरिटी इसको कैसे अलाउ कर देती हैं? नहीं, होम्योपैथिक लॉ में नहीं है ऐसा, लॉ में अलाउड होम्योपैथिक है। ओके। मैं, प्रिंसिपल्स। जी हाँ, जी लॉ में डॉक्टर। अलाउड है। नहीं है। डेफिनेशन आप देखिए, मैंने, आप दोबारा से देखिए उसमें, अंडर द डेफिनेशन इट इज अलाउड। और जो अभी पूछा था कि मिक्सचर वगैरह का जो है वो क्या होता है सिस्टम कॉम्बिनेशंस का, तो वो उस पार्ट के अंदर अलाउड है। जी ठीक है सर। थैंक यू सो मच। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए। डॉक्टर हिमानी, कोई रह गया? Yes, sir. जी एक Thank you so much, एक चीज। Dr. RN Bhai, sir. एक मिनट, डॉक्टर निशांत कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, एक बैटर बीच में डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग शुगर ऑफ मिल्क, कि शुगर ऑफ मिल्क जो आता है हॉलैंड से, HMS या कहीं से भी आता है। मेन तो सबसे ज़्यादा HMS का यूज होता है, इसलिए मैंने HMS नाम लिया। एक्चुअली इट्स लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क, जिसके ऊपर एक्सपायरी लिखा होता है 24 मंथ्स ओनली, 2 years। और उसी से जब मेडिसिन बन जाती है तो उसके ऊपर एज पर ड्रग रूल मेंशन होता है एक्सपायरी 5 years। तो ये क्वेश्चन था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो रॉ मटेरियल ही 2 साल में एक्सपायर होता है, उससे जब मेडिसिन बन गई तो 5 साल का कैसे हो गया। ये क्वेश्चन आया था बीच में, जी। जिसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में एक्सपायरी पहले तो होता ही नहीं था, किसी भी चीज पे मेंशन नहीं होता था। बट एक टाइम आया एज पर ड्रग रूल कि उस पर एक्सपायरी मेंशन होने लगा, और उसमें डिल्यूशन पे भी मेंशन होता था। जबकि डिल्यूशन बनता है अल्कोहल बेस, और वो तो खुद प्रिजर्वेटिव है, वो तो कभी एक्सपायर नहीं होता है। बाद में अमेंडमेंट करके, मैं भी उस कमेटी का एक मेंबर था, फार्माकोपिया कमेटी का, अंडर पहले हेल्थ मिनिस्ट्री में था, बाद में वो आयुष मिनिस्ट्री में था, तो उसका मैं इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एक्सपर्ट था।
तो उससे क्या हुआ कि डिलीशन के ऊपर एक्सपायरी फिर खत्म हो गई। बट बाकी जो मदर टिंचर है उसमें वाटर कंटेंट हुआ तो वो है, लेकिन बायोकेमिकल सिस्टम ऐसा है कि जब एक्सपायरी नहीं लिखी जाती थी तब भी बायोकेमिक कभी 1 साल 2 साल में भी खराब होता था, एक्सपायर नहीं होता था। और कभी 10-10 साल भी टैबलेट्स ओके हैं। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक में, बहुत सारे पुराने शॉप्स में और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैंने देखा है 20 साल पुरानी टैबलेट्स हैं जो पूरी प्रॉपर है, ना तो डिस्कलर हुआ है और ना ही कोई इशू है, और वो एक्टिव भी है। मीन अगर पेशेंट्स को दिया तो प्रॉपर एक्शन भी मिला, कोई भी उसका साइड इफेक्ट या कुछ भी अलग से नहीं मिला, कंट्राडिक्शंस। तो ये बायोकेमिक में ऐसा है कि जब वो मेडिकेटेड हो जाता है, टैबलेट बन जाता है, तो वो खराब हो रही है, एक्सपायर नहीं हो रही है। जी, यही मेरे को बस क्लैरिफाई करना था। थैंक यू। Okay. जी इस मामले में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नाना जी जो थे, ही वाज आल्सो ए वेरी रिप्यूटेड होम्योपैथ ऑफ हिज टाइम। तो एक बार ऐसा हुआ कि आई थिंक देयर वाज सम ब्लीडिंग समवेयर, तो मेरे एल्डर ब्रदर जो थे, डॉक्टर बीएन भाई जो मेरे एल्डर ब्रदर थे, तो उस वक्त में उनको नाना जी ने मेरे बोला कि तुम एक काम कर बेटा, इसमें चेस्ट में से हेमोमेलिस 6 निकाल करके दो। अब भाई साहब ने हमारे वो तो निकाल ली, उसको देखा, कहना कि नाना जी ये तो गोलियां बिल्कुल पिघली गए, तो लाल पड़ रही हैं गोलियां। कहना तुम कोई टेंशन मत लो, तुम दो मेरे को। उसमें से निकाल करके दी और वो बहुत एक्टिव, बिल्कुल फाइन एक्ट उसका एक्शन था, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिला। और एक एग्जांपल मैं और भी दे देता हूँ। एक मेडिसिन थी, अगर देखिए कोशिश करूँ याद रखने का नाम, लेकिन वो मेडिसिन डॉक्टर चित्कारा ने हमसे एक बार हमारे मंगवाई थी एक बार। और वो कब थी, जबकि इंडिपेंडेंस से पहले की आई हुई थी हमारे यहाँ, बोरिक एंड टैफिल की थी, और दैट वाज इन 1-एक्सपोटेंसी। नाम उसका आदि एल से था या टी से था, मेरे को भी याद करूंगा मैं, याद आएगा बीच में बता भी दूंगा मैं। तो इतनी पुरानी मेडिसिन वो मंगवाई उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ से, और उसमें काम किया और वर्किंग वेरी नाइसली। और इस बात में मेरा ख्याल है तकरीबन 30 साल पुरानी मेडिसिन थी वो, 30 ईयर्स। जी सर, जहाँ तक मुझे इस चीज़ की नॉलेज है तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब डिपेंड करता है कि जो प्रिजर्वेटिव की मात्राएं मिलाई गई हैं वो कैसी हैं, और जो मेडिसिन का रख रखाव का तरीका है वो कैसा है। अगर आप खुले में छोड़ेंगे या अगर आपको एयर टाइट नहीं करेंगे तो आपकी जो मेडिसिन है वो जल्दी बेकार हो सकती है। और एक्सपायरी का मीन सिर्फ केमिकली इतना होता है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पे हैं तो हम किसी को ये एडवाइस नहीं कर सकते कि आप भैया आपको कोई पुरानी दवाई मिले तो आप बिना डॉक्टरी सलाह के खा लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये काम डॉक्टर का है। अगर डॉक्टर कहता है कि ठीक है तो आप उधर जाइए। तो जहाँ तक एक्सपायरी की बात होती है तो एक्सपायरी का मतलब केमिकल कंटेंट में इतना होता है कि केमिकल कंपोजिशन अपना रूप जो है वो बदल लेती हैं। जहाँ तक अभी डॉक्टर वाही सर ने भी बताया कि एलोपैथिक में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों पे काम करती हैं और उनकी एक्सपायरी का मतलब एक्सपायरी होता है। और हमारी एक्सपायरी का मतलब अभी भी हम लोग थोड़ा सा वेग हैं, क्योंकि हमारे जो रिसर्च का जो पैटर्न है वो थोड़ा कम है। अगर हम सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स की बात की जाए तो हमारे अगर प्रिंसिपल्स पे चलें तो प्रिजर्वेटिव्स का कहीं भी नाम नहीं आता था, लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो हमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाने पड़े, वरना बायोकेमिक्स या किसी भी चीज़ में प्रिजर्वेटिव मिलाना डॉक्टर हैनीमैन के प्रिंसिपल सर के जो है वो अगेंस्ट जाता है। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजीज हैं आगे बढ़ते रहेंगे और प्रिजर्वेटिव मिलाने से हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती रहेंगी, तो कोई भी ऐसी दवाई जो आपको अगर कहीं पुरानी मिल जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, उसको दिखाइए। अगर वो किसी यूज़फुल कहता है तभी आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोई पुरानी दवाई आपको कोई डोनेट कर गया है तो आप ले लें। मैंने मैंने भी ऐसी बहुत सारी पेशेंट्स हैं जो बहुत पुरानी पुरानी दवाइयाँ मेरे पास लेके आए, बहुत इफेक्टिव थी। और डॉक्टर निशांत आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे पास नए लगभग 62 का एक मेरे पास लॉट आया, जिसके जो ग्लोब्यूल थे वो आज भी बिल्कुल प्योर वाइट थे और बहुत इफेक्टिव थे, बिल्कुल भी स्टेन येलो नहीं हुए। लेकिन जो हमारे आजकल के ग्लोब्यूल हैं वो शायद 2 या 3 साल के अंदर येलो स्टेन लेने लगते हैं। इसका जो कंटेंट है, जो अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन पर और रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो वो सबके लिए सब समान होने चाहिए। हर कंपनी के लिए एक से होने चाहिए, हर कंपनी के ग्लोब्यूल का साइज एक सा होना चाहिए, हर कंपनी के ग्लोब्यूल्स का जो इंग्रेडिएंट हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। लेकिन अभी हम लोग होम्योपैथी में शायद सिर्फ ग्लोब्यूल के कंपोजिशन को भी सेम नहीं कर पाते हैं। किसी का बहुत थोड़ा येलो है, किसी का वाइट है,
किसी का कोई राउंड शेप है, किसी का ओवल शेप है। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये बहुत अच्छे से होने चाहिए। जहाँ तक हम आज सब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक गाड़ी ली, तो उसमें जब लोन पास करा रहा था तो इतनी बड़ी एक बुकलेट थी, तो मैंने कहा यार मैं जरा पढ़ लेता हूँ इस बुक को। तो उस बैंकर ने मुझसे कहा कि सर अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आप लोन नहीं लेंगे। सेम अगर आपने कोई नया मोबाइल खरीदा है और कोई एंड्रॉयड है या कोई एप्पल का है, जब तक आप उसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो आप उस मोबाइल को चला ही नहीं पाएंगे, ना उस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी और चीज़ के लिए, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, थोड़ा डिफरेंट होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग रूल्स को भूल जाएं या प्रिंसिपल्स को भूल जाएं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अलग चलती हैं। आज हमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिली है डॉक्टर आर्यन भाई सर से, जैसा हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं उनसे। और जो इन एक्ट्स के बारे में है, अब जितना सर ने आज एक्ट बताया, तो अगर कोई भी होम्योपैथी फिजिशियन अगर इसको डीपली बहुत सोच जाए तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ अलग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आर्यन भाई सर, डॉक्टर निशांत सर, और हमारे डॉक्टर आर खान सर, हमारे पैटर्न सर हैं डॉक्टर वीपी सिंह सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि पैटर्न है डॉक्टर वीपी सिंह सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक डॉक्टर कान से पूछे कि वो सिंपैथी में जो आई वर्ड है उसका क्या राज है? अभी अभी आएंगे, उस बात पे भी आएंगे। मुझे याद है, मुझे याद है सर। डॉक्टर वीपी सिंह सर। डॉक्टर वीपी सिंह सर के यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। डॉक्टर आरकान सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक। मेरी वॉइस आ रही है ना? जी सर। ओके। सो पहले तो मैं डॉक्टर वाई साहब सर का जो क्वेश्चन है सिंपैथी में आई जो है उसका क्या राज है, तो उसमें ऐसा कुछ राज नहीं है सर। सिंपैथी इज अ कॉम्पैक्ट नेम ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन मेडिसिन प्रमोटिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी एंड योगा। ये कंप्लीट आयुष को लेकर के ऐसा सिंपैथी बनी है। और बीइंग होम्योपैथ, हम लोग होम्योपैथी के लिए काम कर रहे हैं और होम्योपैथी के लिए हम लोग डिवोटेड हैं। बाकी अलग अलग फील्ड में और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और लोग काम कर रहे हैं। योगा के फील्ड में काम हो रहा है, आयुर्वेद के फील्ड में काम हो रहा है, बट आई एम एसोसिएटेड विद द होम्योपैथी। एंड होम्योपैथी का जो रोल है हम वो आपके सामने रखते हैं। तो ये पूरी सिंपैथी का जो नाम का डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको आज बता दिया, और शायद सभी लोग इस कंफ्यूजन को से दूर हो गए होंगे कंफ्यूजन। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। और डॉक्टर वाही सर ने जो लैक ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो होम्योपैथी को नीचे की तरफ ले जा रहा है या होम्योपैथी को प्रमोट करने में रोक रहा है, वो सारी पॉइंट्स को रखे। और हम लोगों को थोड़ा सा इसमें बीइंग ए होम्योपैथ फार्मेसी पीपल, हम लोगों को थोड़ा सा इसमें अवेयर होना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं जिसको कि होम्योपैथी को आगे बढ़ने में वो सारी चीज़ें रोकती हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो भी है, इसमें आपने देखा होगा कि पॉइंट टू पॉइंट डॉक्टर वाही सर ने बहुत शॉर्ट तरीके से आपके सामने रखा। और उस चीज़ पे हम लोगों को आगे बढ़ करके गवर्नमेंट को से कैसे काम कराना है, कैसे इसको ठीक कराना है, इस विषय पर भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन वो सेपरेट सब्जेक्ट है, हम उस पर जब बात करेंगे तो हम डॉक्टर वाही सर से सेपरेटली बात कर लेंगे और उस पर हम लोग काम भी करेंगे। बात रही इसमें निशांत सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से HPL और HPI दोनों के काम को बताया, और मैं समझता हूं कि ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक्सपायरी को लेकर के बहुत क्यूरियोसिटी थी सभी लोगों के अंदर, सारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर। मैं आपको बता दूं कि एक्सपायरी पे ही पूरा सेशन हम लोगों ने कल के लिए रखा है। जो डॉक्टर आर वालावन कल आप लोगों को एक्सपायरी पे ही अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में
एक्सपायरी की क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, वो सारा कल हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। जो आज रह गया है, जो डॉक्टर वाई सर ने, डॉक्टर निशांत सर ने बताया आप लोगों को, उससे यदि सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर कल इस पर हम लोग बहुत अच्छे एलेबरेट तरीके से उस पर चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर वाही सर ने एक चीज, मेरा क्वेश्चन रह गया था, वो शायद यदि इस पे, चूंकि ये बहुत, जब से मैं फार्मेसी का काम कर रहा हूं तो ये मेरे मन में हमेशा सवाल उठता रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने के लिए एक आइडियल वे क्या है होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथी के लोग यदि होम्योपैथी की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उसका क्या रूल्स एंड एक्ट है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को, ताकि वो लोग थोड़ा सा उससे लोग लाभान्वित हों और जो इस सब्जेक्ट पे कंफ्यूजन है और डाउट है वो थोड़ा सा दूर हो पाए। ये आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। मैं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास में तो 2019 का एडिशन है, उसके बाद थोड़े और अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब ये बुक जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, एंड रूल्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं। अब ये जो मेरे पास में वर्जन है, ये है ऑलमोस्ट 550 पेजेस करीब का बढ़ रहा है। 630 पेजेस का है ये टोटल, जो कि आयुर्वेद, यानी एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, हम सबको कवर कर रहा है ये। लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस का प्रोसीजर सारा रूल्स नंबर 85 के अंदर दिया हुआ है, और जो आप यूनिट सेटअप करते हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल्स शेड्यूल M1 में दी हुई हैं। तो उसके मुताबिक ही आपका होगा कि कैसे प्रेमिसेस होगा, क्या एयर वेंटिलेशन का सिस्टम होगा, कैसे किस तरीके से पार्टिकल में डस्ट का ज़रा भी नहीं जाना चाहिए, वायरसेस को कैसे रोका जाएगा, क्या टेम्परेचर होगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आप जाते हैं तो आपको PPE एक्चुअली ड्रेस पहन करके जानी पड़ती है। जो निशान जी मेरे से सहमत होंगे, तो बहुत यानी चेंजेस हैं। मैंने एक बार, बहुत साल हो गए, एक जगह मेरे जाना हुआ था, तो जब तक ये रेगुलेशन वगैरह कुछ लागू थे ही नहीं, और मैंने देखा था कि एक वो सिरप कोई सा बन रहा था बना था, जो कि एक परात के अंदर रखा हुआ था। बिल्कुल ओपन के अंदर, एक परात के अंदर रखा हुआ था, जो कि सिरप था। अब मैं तो खैर उस वक्त में तो खैर उनसे क्या कहता है, जो कि वो जो ओनर थे उसके मेरे से काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी मैं आज भी काफ़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी उनकी स्टडीज़। और तब उन्होंने बल्कि मेरे को बताया था कि एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पब्लिकेशन है द वेल्थ ऑफ इंडिया, जिसमें कि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जो कि कहाँ ओरिजिन बाहर का और यहाँ पर भी कहाँ पर उसके नियरेस्ट अवेलेबल हैं। तो ये उन्होंने बताया, बहुत चीज़ें उसके बहुत नहीं सीखने को भी मेरे को मिली उनसे। मगर क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं थे, मेरे को अब पता भी नहीं था क्या होते हैं क्या नहीं होते, बात की बातें हैं सारी। बट ये भी मैंने पोजीशन देखी है। और आज जो उनकी जनरेशन अगली है, वो उनका काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है, और शायद वो कंपनी ऐसी है जो कि एक्सपोर्ट में काफ़ी काम बिजी है। तो ऐसा भी है। और जो मेरा क्वेश्चन मेरा एलिजिबिलिटी को लेकर के था। हाँ, नहीं देखिए, उसके अंदर रूल्स नंबर 85 के अंदर और आपको शेड्यूल M1 में जाइए, सर सब डिटेल दी हुई है। सर 85 में ये लिखा है कि किसी भी होम्योपैथी में 5 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल का जो BHMS क्वालिफाइड बंदा होगा उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लेना है। और यदि कोई एलोपैथिक बी फार्मा करके आता है तो उसको डायरेक्टली विदाउट एक्सपीरियंस उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने का अधिकार है। अब आप बताइए, किसी एक सेम चीज को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है, एलोपैथी का बी फार्मा है, उसको होम्योपैथी का पता नहीं क्या है, पता है नहीं है, और उसको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया जा रहा है।
और BHMS करने के बाद 5 साल BHMS होम्योपैथी की जानकारी लेने के बाद उसको 5 साल के एक्सपीरियंस की क्यों जरूरत पड़ गई? ये भी इसमें भी एक रिफॉर्म होने की जरूरत है। जहां तक हमें रिफॉर्म तो बहुत जगह जरूरत है। अब देखिए, मैं एक बार चीज जानता हूं कि अब जो कि MD भी होने लगी है होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर, जब वहां तक आपने कर दिया तो जाहिर है कि इन लोगों के ऊपर काफी एक्सपोजर होता होगा, और जिनको कि मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर जाना ही पड़ता होगा। अब जैसे अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि लेबोरेटरी जो है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से आएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि HPL का जैसे जिक्र किया था डॉक्टर त्रिपाठी जी ने, वो ये था कि वो सैंपल फिनिश प्रोडक्ट का वो चेक करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, जो उनके पास में सैंपल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स की तरफ से जाता है वो उसी को चेक करते हैं। अगर आप चाहें कि रॉ मटेरियल को टेस्ट करा के उसकी अप्रूवल आप ले लें, तो वो प्रोविजन अभी तक नहीं है। नहीं, हमने एक चीज के लिए अप्रोच जरूर किया है, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज दी गई है, मतलब कि भी आप प्राइवेट लेबोरेटरीज जिनको कि NABL सर्टिफिकेट आप अप्रूव्ड हो, क्योंकि चेक करने की एजेंसी और रेगुलेशन की दूसरी हो जाएगी। क्वालिटी को चेक करने के लिए जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो स्टैंडर्ड ले डाउन करते हैं। NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरीज हों, और हर एक को देखिए, हर एक को यूनिट तो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी लैब मेंटेन करने के लिए, तो जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको कम से कम जो NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं वो उनके अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो रॉ मटेरियल को चेक कर सकें। और मैं जहाँ तक आगे अगर आप चाहें तो मेरा अपना उसको विजन कहिए, सोचने कहिए कि आगे देखिए जो कमर्शियल काम होता है वो कमर्शियल तरीके से ही होता है। उसके लिए एक और भी सिस्टम है लोन लाइसेंस का, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोन लाइसेंस अभी तक का नहीं हुआ। परपेचुअल तो अब प्रपोजल के अंदर आ गया, परपेचुअल लाइसेंस तो हो जाएगा, एक बार हो गया तो बाद में बार बार ऑटोमेटिकली बार बार रिवीजन के लिए पूरा प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। ये अभी जुलाई की मीट में जो है नोटिफिकेशन के अंदर इसका प्रपोजल है। लेकिन अब हर एक स्टेज पर कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आती है, उसके क्या सोल्यूशन होना चाहिए, हमको वो चीज़ें बराबर गवर्नमेंट को लिखते रहना चाहिए। वहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि एक हमारा फोरम ऐसा होना चाहिए जो कि तीनों सेक्शंस को देकर के, वरना प्रोफेशन ट्रेड से को कहते हैं कि ये हमारे को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं हमको, और ड्यू रिगार्ड्स इंडस्ट्री वाले वो कहते हैं कि भाई हमको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ट्रेडर वाले कहते हैं कि यार कि हमको तो ये नहीं कुछ करते हैं ना, सीधे डायरेक्टली लाके जो है वो मतलब ये खुद कंपटीशन कराते हैं बिटवीन द डीलर एंड द प्रैक्टिशनर। तो ये चीज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, आई वुड पुट इट। मगर ये मैटर हो, देखिए ये कंपटीशन का हिस्सा है, लेकिन जहाँ तक कॉमन मैटर होता है वहाँ पर हम सबको कलेक्टिवली ऐसा काम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से ये तो पता लगे कि एक होम्योपैथिक प्रोफेशन डेट सारे इकट्ठे यूनाइटेड हैं, उसी की सुनाई होती है। लेकिन डॉक्टर भाई मेन चीज क्या है कि चाहे ड्रग रूल है, या बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सिंपैथी इंस्टीट्यूट ने कि एक एलोपैथ को हमेशा वरीयता मिलती है, मतलब वो फार्मा वाला भी है तो वो ओके है, होम्योपैथ वाला है तो उसको एक्सपीरियंस अभी गेन करना है। ये एक्चुअली ये सब जो रूल बनाने वाले हैं वहाँ पे होम्योपैथ तो है नहीं। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि बताया कि एक को आर्सेनिक आर्सेनिक के ऊपर प्राइस फिक्स कर दें, जबकि होना चाहिए डाइल्यूशन के ऊपर प्राइस फिक्स होना चाहिए। तो मतलब जो रूल बनाता है उसको तो इस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। जो एक होम्योपैथिक लाइसेंस देता है उसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देता है उसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। तो जब तक वहां पे होम्योपैथ से रिलेटेड पर्सन नहीं रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। सिमिलर जैसे FDA में, CTSCO में कोई भी होम्योपैथ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जो कि पिछले 4 साल पहले
एक वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करके होम्योपैथी के लिए स्पेशल एक्सपीरियंस पर्सन बैठाया गया है IITO पे। पहले तो कोई था ही नहीं। मुझे याद है अगर हम चले जाएं FDA में या CDSCO में किसी चीज के लिए, तो उनका ये कहना है आपका तो होम्योपैथिक दवाई है, ये तो ना फायदा करता है ना नुकसान करता है, इसमें क्या है, जो करना है करिए। मतलब जो अथॉरिटी बैठी हुई है, जो इसको लीगल ओपिनियन देना चाहिए या कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए ऑथराइज हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको होम्योपैथिक के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर वो तो ऐसे ही रूल बनाएंगे और हम उनके बनाए हुए रूल को फॉलो करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। नहीं, अगर वहां पे होम्योपैथिक रिप्रेजेंटेशन हो हायर अथॉरिटीज में, तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मेरा मैं ऐसा यहाँ व्यू है, जो मेरा खुद का नहीं, एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर एक चीज अगेन कहना चाहता हूँ कि जो बार बार कम से कम 5-6 साल हो गए, जो कि जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई फोरम होता है, तो मैं मुझे फर्स्ट पर्सन से कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन की डेफिनेशन को एक्ट के अंदर लाइए। जब आप एक्ट में लाते हैं तो आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आपका होम्योपैथी का अलग होगा, उसके साथ साथ ही हमारा डायरेक्टरेट होगा, हमारा ड्रग्स कंट्रोलर होगा, तभी ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। उसके बगैर तो अभी चलता रहेगा ऐसे ही। सर यहीं पर ये एक क्वेश्चन बहुत और आ जाता है डॉक्टर निशांत हाँ जी, आपसे, बहुत जो अथॉरिटीज हैं वहां तक हम होम्योपैथ पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वो इस वजह से कि हम लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। हर ठीक है। जो है एक इंडिविजुअल तौर पर आई मस्ट मैं सॉरी टू से, ऐसे लोग काफी हैं हमारे यहाँ कि जो कि अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन समझते हैं। आप नहीं, ये भी तो देखें। बहुत ये लंबा डिस्कशन है सर, और मैं हाँ, आगे भी कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोगों के साथ जोड़ करके ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आगे इसको चल करके इसको सारी चीज़ों को गवर्नमेंट से ठीक कराया जाए। मैं इसके लिए आपसे सेपरेटली जरूर बात करूंगा। निशांत सर, आपसे भी बहुत काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, और निश्चित रूप से मैं आपसे भी सेपरेटली मिलूंगा और इस सब्जेक्ट पे हम लोग कुछ काम करेंगे। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। पता नहीं वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, हमारे तरफ से तो ऑन है। चलिए कोई बात नहीं। कोई टेक्निकल इशू। कोई बात नहीं सर। तो निश्चित रूप से हम लोग इस पे काम करेंगे। बहुत लंबा हमने समय ले लिया है पार्टिसिपेंट्स का, इसलिए डिस्कशन हम लोगों को यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। और एक बार फिर हमारे तरफ से डॉक्टर वाही सर को, डॉक्टर निशांत सर को, डॉक्टर वसीफ सर को, दीपक सर को, डॉक्टर वर्मा सर को, डॉक्टर वेंकटेश तिवारी जो पटना से हैं, डॉक्टर संतोष चिंचोलकर जो महाराष्ट्र से हैं, आप सभी पार्टिसिपेंट जो बहुत इंटरेस्ट लेकर के आप लोगों ने डॉक्टर वाही सर के सेशन को सुना, और निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। ये आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा जो वेबिनार का जो सीरीज है, डॉक्टर हैनमैन के डेथ एनिवर्सरी पे हम लोगों ने उसको डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से डॉक्टर हैनमैन सर पहले भी बोल के गए हैं कि एक अच्छा फिजिशियन एक अच्छा फार्मासिस्ट होना चाहिए, और यदि आप अच्छा फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आप अच्छे फिजिशियन नहीं हैं। तो हम लोग इसी इथिक्स पे काम करते हैं। तो फार्मासिस्ट होने के लिए फार्मेसी की जानकारी, ड्रग एंड एक्ट की जानकारी, एक्सपायरी की जानकारी, सभी चीज़ों की जानकारी हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम प्रैक्टिस की बात करते रहें, और जो बहुत चीज़ें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उस पर हम लोग काम ही ना कर पाए। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन थैंक यू से पहले सर मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर RN भाई सर को हम दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और सिंपैथिक सर्टिफिकेट दें। डॉक्टर VP सिंह सर हमारे पैटर्न की प्रेजेंस में, डॉक्टर आरकान सिंपैथी के जो डायरेक्टर हैं उनकी प्रेजेंस में सर आपके लिए एक छोटा सा सर्टिफिकेट। हालांकि हमें पता है कि आप इतने प्रतिभाशाली आदमी हैं और हम लोगों को दौड़ाए रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप दौड़ाए रखो, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे जरूर जहाँ तक आपने अभी बात करी है, चाहे वो कैसे भी पहुँचेंगे। आज आपने आदेश दिया है इसको काम करने का, तो ये भी करेंगे जरूर। डॉक्टर VP सिंह सर
आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर दीपक शर्मा, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन डॉक्टर आर.एन. वाही से है। हेलो जी सर। सुन रहा हूँ मैं। हेलो हाँ जी, सर मैं सुन। हाँ, डॉक्टर आर.एन. वाही से एक मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो बातें अभी हुई हैं हमारी, इनमें सबसे बड़ा रोल एक्चुअली हमारी बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम है। इसमें अगर हम वो इंटरेस्ट लेता बोर्ड, तो हम लोग आगे चल करके इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जैसे सीनियर लोग जब हमारे साथ होते हैं तो हिम्मत तो आती है, लेकिन वहाँ कई बार मैंने बोर्ड की मीटिंग में इस बात को उठाया भी है, लेकिन वहाँ से कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हमको एकजुट होना बहुत जरूरी है। आपका जो सजेशन है कि हम लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन इसका एक माध्यम, अगर बोर्ड एक सरकारी एक संस्था है तो उसमें बैठकर के हम साथ रहें तो ये बहुत अच्छी बात है। एक अब तो हम यहाँ मिल लिए, डॉक्टर आर.एन. भाई मिल लिए, आरकांत मिल लिए, निश्चित साहब मिल लिए, लेकिन इसके लिए अगर एक मंच हम वहाँ बोर्ड में बना लें, उनको साथ लेकर चलें, क्योंकि हमारी बात उनके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचती है, तो हमको शायद समझते हैं आएगा कि बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे, किसी बात को लेकर के मैं उनसे मिला, तो अगले दिन उनका टेलीफोन आया, यार इस बात को लेकर के तो 4 लोग मुझसे कल मिल के गए हैं, तुम लोगों में एकजुटता ही नहीं है, आप लोग एक यूनाइट नहीं हो सकते ऐसा कि सब लोग मैं मिल करके एक उस पर कुछ काम कर सकूं। तो ये तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए कि हम एक बात नहीं हो पा रहे हैं। और इसके लिए मैं डॉक्टर आर.एन. भाई का बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो अभी भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अदरवाइज और बहुत जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे नाम लेने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो लोग जो है वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। लाख लाख 2-2 लाख की सैलरी से वो रिटायर हुए हैं और पेंशन ले रहे हैं बहुत अच्छी, लेकिन उनसे आज अगर हम किसी संगठन की किसी बात की किसी समस्या की बात करते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो डॉक्टर भाई हमारे लिए इस टाइम बहुत थैंकफुल है कि वो अभी भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ सोचिएगा, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भाई। सर मैं तो आपको, आप देखिए कभी भी हैं किसी भी इश्यू के ऊपर हो, आप मेरा विचार क्या आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, मैं उसके लिए हर समय तैयार हूं। कभी मैंने मना किया भी नहीं और ना करूंगा। मैं एक बात जानता हूं कि देखिए, नहीं सर, आपको जिस प्रोफेशन ने आप हमें रोटी कपड़ा मकान और इज्जत दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस प्रोफेशन के लिए क्या कर रहे हैं। ये मेरा अपना निजी थिंकिंग है। और मैं कभी भी किसी भी फोरम के पे ये नहीं आपकी कहते। बात बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। आप देखिए गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, अगर हम उनसे कोई बात कहते हैं तो वो उसको टाल मटोल कर देते हैं, है ना। तो इसलिए आपका साथ बहुत जरूरी है। कई बातें अभी डॉक्टर आरकांत ने जो उठाई है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं ये। थैंक यू सो मच सर। और अब चाहते हैं कि मीटिंग को एंड करें, क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर.एन. भाई सर, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर कांत, डॉक्टर वीपी सिंह और सभी लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।